السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم، وزیراعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی، آرمی چیف، وفاقی وزراء اعلیٰ کی شرکت، وزیراعظم کا ملکی اور غیر ملکی مندوبین کا خیر مقدم۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور دیگر ملکوں کے مندوبین کا اظہار دلچسپی، مختلف معدنیات کی نمائش کا بھی انعقاد، غیر ملکی سرمایہ کاروں اور مندوبین نے معدنیات کے معیار کو سراہا۔ These deposits value trillions of dollars. I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان، قدرت کے بے پناہ خزانے ارض پاک میں موجود ہیں۔ کھربوں ڈالرز کے معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند۔ فورم کے انعقاد سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ خام مال کی بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کان کنی کی صنعت کے لیے فنی تربیت لازم، نوجوانوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے نجی شعبے اور حکومتی سطح پر شراکت داری کا فروغ۔ سرمایہ کار کمپنیز نوجوانوں کو ہنر کی فراہمی میں کردار ادا کریں، ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اقتصادی ترقی قومی سلامتی کا اہم جزو، پاکستان عالمی معدنی معیشت میں اڑان بھرنے کے لیے تیار، وسائل کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی شراکت داری اہم، پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے پر اعتماد شراکت دار، ہمیں معدنی شعبے کی ترقی کے لیے ماہرین درکار ہیں، سرمایہ کاروں کے مفاد اور اعتماد کے لیے فعال اقدامات کیے جائیں گے، وسیع معدنی ذخائر، مہارت اور شفاف پالیسی کے اجالے مایوسی کے اندھیروں کو ختم کریں گے، آگے بڑھیں، ملک اور اپنے لیے جد و جہد کریں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر، پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا مقصد معدنی شعبے کے مواقع اجاگر کرنا ہے، سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا فورم سے خطاب۔ پاکستان میں معدنیات کی تلاش اور ترقی، غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ مفاہمتی یادداشتیں اور معاہدے۔ ایم ایس پی اور بیرک گولڈ کے درمیان پاکستان منرل سیکیورٹی شراکت داری کے لیے ایم او یو۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا چین، برطانیہ اور روس کی کمپنیز کے ساتھ 5 ایم او یو کا تبادلہ۔ بلوچستان میں معدنی شعبے کی ترقی کے لیے ایف ڈبلیو او، نارنگ مائننگ، بی ایم آر ایل اور مقامی مائدین میں ایم او یو کا تبادلہ۔ ایف ڈبلیو اور آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ کے درمیان معاہدہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عالمی شپنگ کمپنی میرسک کے چیئرمین کی ملاقات، پاکستان میں 2 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری، کمپنی کے ساتھ یادداشتوں کے معاہدوں کی شکل دی جائے۔ وزیر اعظم ٹیکنیکل ورکنگ گروپ 1 ماہ میں سفارشات پیش کرے، میری ٹائم شعبے کو عالمی مسابقتی معیار پر لایا جائے گا، وزیر اعظم کی کمپنی کو مزید سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی ناگزیر، بلوچستان کی باصلاحیت افرادی قوت قیمتی اثاثہ، ترقی کے اقدامات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلوچستان وکلا قیادت سے گفتگو، صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو، وفد کا بلوچستان کی ترقی کے لیے اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے بائنانس کے بانی چینگ بینگ جاؤ کی ملاقات، ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے جدید علوم کے فروغ پر اتفاق، نوجوانوں کو عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، بدلتی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا،
پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے، محمد نواز شریف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات، تجارت، معیشت و سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال، علاقائی تجارت اور روابط مستحکم کرنے پر اتفاق، وزیر خزانہ کی تنظیم کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی، مختلف فورمز میں نمائندگی مزید فعال بنانے پر اتفاق۔ تیل اور گیس کی تلاش میں اہم پیش رفت، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان آف شور ایکسپلوریشن میں مشترکہ بڈنگ معاہدے پر دستخط، بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے، ترکیہ کے ساتھ توانائی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک۔ سپریم کورٹ کا ٹرائل کورٹس کو 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم، انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 روز کی پیش رفت رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت، انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کیا جائے، بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ 9 مئی واقعات میں نقصانات، پنجاب نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، 38 شہروں میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہنگاموں سے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، 319 مقدمات درج، 35,962 ملزمان میں سے 11,367 گرفتار، 24,595 ملزم تاحال مفرور ہے، رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید، صحافیوں کے خیموں پہ بمباری سے جاں بحق فلسطینی صحافیوں کی تعداد 3 ہو گئی، مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں، 38 فلسطینی گرفتار۔ متنازع وقف بل، پورا بھارت احتجاج کی لپیٹ میں، بی جے پی کو سخت عوامی رد عمل کا سامنا، وقف بل کی حمایت پر بی جے پی اقلیتی صدر کا گھر نظر آتش، منی پور مودی کی نفرت کا شکار، بل قبول نہیں، بی جے پی رہنما نے احتجاج کے خوف سے معافی مانگ کر موقف تبدیل کر لیا، بل کے خاتمے کا مطالبہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات، براہ راست مذاکرات ہفتے سے ہوں گے، کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو ایران کے لیے برا ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ، ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی، ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت ہفتے کو عمان میں ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ پہلی ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے، کوارٹر فائنل میں فرانس کے میلویل کو 3-0 سے شکست، پاکستان کے محمد حمزہ خان کو کوارٹر فائنل میں ناکامی، ملائیشیا کی امیش راج چندرن 3-1 سے کامیاب، چیمپئن شپ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ دمادم مستب تیرے جیسے گھر بھیجیں گے 10 سب، ہمیں کمپٹیشن کوئی نہیں دے، ہمارے سکسر بولے وہیں دیکھ، دمادم مست دیکھو، آج میرا ایکس دیکھو، ایسی میری وائب دیکھو، کیسا میرا فیکس دیکھو، دمادم مست دیکھو۔ پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار، پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں 3 روز باقی، ٹیموں کی تیاریاں جاری، افتتاحی میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز 11 اپریل کے درمیان راولپنڈی میں کھیلیں گے، پاکستان سپر لیگ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کل سے لاہور میں کھیلا جائے گا، پہلے میچ میں میزبان پاکستان اور آئرلینڈ کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی، دوسرا میچ اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز خواتین ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا پیارا پاکستان الحمدللہ اب ترقی کی اڑان بھر چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اجتماعی کاوشوں سے تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم پاکستان کا نوجوانوں کے لیے اسپیشل انیشیٹو، نیفٹیک اور پاکستان ایسوسی ایشن آف پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس انڈسٹری کے باہمی اشتراک سے انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے نیفٹیک کر رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز، آف سیٹ پرنٹنگ مشین آپریٹر لیول 2 اور پوسٹ پرنٹنگ آپریشنز پیکیجنگ لیول 2 میں انڈسٹری کے تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی مفت فنی تربیت کا آغاز۔ آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 اپریل 2025۔ کلاسز کا آغاز 30 اپریل 2025۔ پیپ گائی کی جانب سے پرکشش روزگار کی گارنٹی۔ کورسز کی تکمیل پر مستند سرٹیفکیٹس اور وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اہلیت کی شرائط اور داخلے کی معلومات کے لیے دیے گئے لنک پہ وزٹ کریں یا فون نمبر 0329123039 پر رابطہ کریں۔ نیفٹیک۔ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ کھربوں ڈالرز کے معدنی وسائل سے استفادہ کر کے پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا اسلام آباد میں انعقاد معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کی زرخیز زمین، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں مدفن خزانے قدرت کا عطیہ ہیں۔ ہم نے ان وسائل سے استفادہ کر کے اپنی عوام کو ترقی اور خوشحالی کی منزل سے ہمکنار کرنا ہے۔ These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم درآمدی کوئلے کی بجائے مقامی کوئلے پر انحصار کر کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت کر رہے ہیں۔ پاکستان کان کنی اور معدنیات کی تلاش کے لیے سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہے، چاہتے ہیں کہ خام مال کی بجائے تیار شدہ مصنوعات برآمد کی جائیں۔ From today onwards, it has to be a very integrated policy where you mine raw materials, have downstream industry, convert them into finished and semi-finished goods, and then export it out. It will be a win-win situation. Raw material carries more freight cost than finished goods. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ہے۔ بلوچستان میں کان کنی سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور علاقے کی سماجی اور معاشی ترقی ہوگی۔ Skilled training is most essential prerequisite for this wonderful business Pakistan has in its mountains, its valleys and plains. And for that, all entrepreneurs would be welcome to have joint partnership with Pakistani entrepreneurs or G2G to train our youth with modern skills.
वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएंगे। 2 रोज़ा फोरम में सऊदी अरब, चीन, अमरीका, यूरोप, एशिया, रूस और तुर्किया समेत मुतअद्दिद मुल्कों से सरमायाकारों, अहम शख्सियात, वुज़रा, एग्जेक्टिव्स, माहिरीन और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात यकीनी बनाएगी। तफसील शेयर कर रहे हैं यासिर हुसैन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत से फायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और माहिर कारकुनों की जरूरत है। पाकिस्तान इस अहम शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की तरक्की में शराकत दारी करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। आर्मी चीफ ने कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती का एक अहम जुज़ो है। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लागत को बेहतर और मंडियों को मुतनव्वे बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जरूरत है। आर्मी चीफ ने कहा कि वसी मादनी ज़खायर और शफाफ मादनी पॉलिसी के उजाले मायूसी के अंधेरों को खत्म कर रहे हैं। आर्मी चीफ का अपने खिताब में ये कहना था कि शराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि कारोबार और मादनी दौलत से इस्तेफादा करने के लिए आपकी महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरएतमाद शराकतदार है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलोच कबायली अमायदीन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कानकनी को फरोग देने और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने भी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद को मुल्क की माशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया। बिल्कुल, और इसी हवाले से तफसील शेयर कर रही हैं नम्रा सुहेल। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिनरल्स फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। मादनी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। पाकिस्तान is entering a new phase of economic progress. Pakistan's resource corridor is primed to reshape global supply chains and attract foreign direct investment. The mineral sector has yet to translate into economic gains proportionate to its potential. The government of Pakistan has therefore prioritized the strategic development of this sector through progressive policy reforms and investor-centric initiatives. वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मजहर है। Government is trying to facilitate the discovery of these minerals and to add value to these products. The vision of the Prime Minister and with the support of the Army Chief was that we harmonize the fiscal and the legal framework under which this entire activity is happening. पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान मादनियात की तलाश, तकनीकी और फनी
ताउन और माशी तरक्की के हुसूल के लिए पैनल डिस्कशन का इनेकाद भी किया गया। पैनल डिस्कशन में गुफ्तगू करते हुए वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। The presence of key investors already working in Balochistan. We have Barrick over here, and its presence is definitely showing the importance. पैनल डिस्कशन में शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उनका कहना था कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर मादनियात की तलाश और तरक्की के लिए मुख्तलिफ हुकूमती और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान 14 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तफसील मरियम मलिक से। मादनियात की तलाश, तकनीकी और फनी ताउन और इलाके की समाजी और मौशी तरक्की के लिए मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियों और कानकुनी के शोबे में दुनिया की मारूफ कंपनियों के दरमियान 14 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के कयाम के लिए पाकिस्तान MSP और बैरिक गोल्ड के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चीन की जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में लिथियम और दीगर मादनियात की तलाश के लिए MOU तय पाया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और बरतानिया की बैनुल अक़वामी जियो साइंस सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए तकनीकी ताउन, जबकि आयरलैंड की होम्सक्रॉफ्ट प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। जियो साइंटिफिक रिसर्च और जियो साइंस डेटा डिजिटलाइजेशन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का रूस की JSC रोज जियो और जनूबी अफ्रीका की स्पेशल डायमेंशन के दरमियान 2 मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। माड़ी मिनरल्स और बलूचिस्तान हुकूमत का चीन की MCC टोंगसन रिसोर्सेज के दरमियान मिनरल पार्क के कयाम, जबकि मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए माड़ी मिनरल्स और ग्लोबल कोर मिनरल्स के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। मादनियात की तलाश के लिए माड़ी मिनरल्स और लिदिया माइनिंग्स के दरमियान MOU का भी तबादला हुआ। मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग के लिए PPL और मेट्सो के दरमियान मफाहमती यादाश्त, खुजदार में बेराइट, लेड और जिंक मंसूबे के लिए PPL और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पाया। FWO, नॉरन माइनिंग, BMRL और मकामी अमायदीन के दरमियान बलूचिस्तान में मादनियात की तलाश और तरक्याती मंसूबों के लिए शराकत दारी का मुआहिदा हुआ। FWO और आजर गोल्ड के दरमियान मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए मुआहिदे का तबादला किया गया। OGDCL और NRL के दरमियान मादनियात की तलाश और पैदावार से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टोव का कहना है कि रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। पाकिस्तान मादनियात के हवाले से अपना खास मकाम रखता है। इस्लामाबाद में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए मार्क ब्रिस्टोव ने कहा कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रेकोडिक मंसूबे से मकामी आबादी को रोजगार के साथ अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से पुरअज़्म हैं, जिससे इलाके में तरक्की और खुशहाली के नए बाब का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग़ में भी भरपूर मदद करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा में जनूब वस्त एशियाई अमूर के आला ओहदेदार एरिक मायर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश किया है। इफ्तिताही तकरीब में शरीक अमरीकी वजारत खारजा के आला ओहदेदार एरिक मायर का कहना था कि इस फोरम के इनेकाद से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि ये फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौके फराहम करेगा। एरिक मायर ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन सोयाबीन की तजारत का दोबारा आगाज़ बाइस मसरत है। 260,000 टन सोयाबीन से लदे 4 जहाज हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये तिजारती रवाबे दोनों ममालिक की आवाम के माबैन गहरे ताल्लुकात की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर तुर्की के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर अली परसलान डायरेक्टर ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम सरमायाकारों के लिए अहम मौका है। फोरम सरमायाकारों और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी की पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है जिससे तुर्क सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। It will be very beneficial for industries, investors, international financial institutions, and also the governments around the world
to come and learn about the potentials and the mineral potentials in Pakistan, which is huge. There is a great potential on the mineral side for Pakistan, and also as Turkey, a friendly country to Pakistan, we are ready and willing to invest in Pakistan for mineral industry. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अलब अरसलान की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र का इजहार करते हुए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट में तुर्क वफ़द की शिरकत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हालिया दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। इस मुलाकात में तवानाई के शोबे ख़ुसूसन काबिल तजदीद तवानाई और समंदर में तेल और गैस की तलाश के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्क वज़ीर ने पाकिस्तान में जारी तवानाई इस्लाहात की तारीफ की और इस शोबे को सरमायाकारी के लिए मज़ीद पुरकशिश करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान में नादर मादनियात की तलाश में भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और आला हुक्काम शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जबरोफ ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, तिजारती हजम और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम करते हुए सदर इल्हाम अलीयव के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया और अपने दौरे बाकू में तय पाने वाले मुआहदों पर इत्मीनान इसका इजहार किया। मुलाकात में मादनियात, तवानाई, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफा और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और बाकू को जुड़वां शहर करार देने की बात तज़ीन और आयश के इक़दाम को सराहा और सदर इल्हाम अलीयव के मुतवक्किया दौरे पाकिस्तान को अहम करार दिया। आज़री वज़ीर मईशत ने पाकिस्तान में मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा, मुशीरान, गवर्नर स्टेट बैंक और आला हुक्काम शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आलमी शिपिंग कंपनी AP मोटर मेर्सिक के जानिब से $2 अरब की सरमायाकारी का खैर मक़दम किया है। उन्होंने कंपनी के साथ यादाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत की। इस्लामाबाद में कंपनी के चेयरमैन रॉबर्ट मिर्सिक ने वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने AP मोटर मेर्सिक के साथ मुआहिदे की तश्कील के अमल में तेज़ी के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाकर 1 माह के अंदर सिफारिशात पेश की जाए। उन्होंने कहा कि तमाम रुकावटें दूर करके मेरी टाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समुद्री वसाइल मुल्क की बेहतरी में इस्तेमाल करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कंपनी को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत भी दी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मिर्सिक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हालिया दौर में मजबूत तरीन हैं। दुनिया भर में क्लाइंट्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राहदारी हमारी कंपनी के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी बंदरगाहों में भी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के वकला की आला क़यादत ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दाम जारी रहेंगे। मुलाकात में बलूचिस्तान की मौजूदा अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करे। इस हवाले से वफ़द ने बलूचिस्तान में कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ सियासी और कबायली क़यादत से मुशावरत को कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के इस हवाले से दीगर सियासी क़यादत और रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों से भी आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान में गवर्नेंस के अमूर के हवाले से आगाही देते हुए तमाम मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और रहनुमाई की दरख्वास्त की। इस मौके पर वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के बलूचिस्तान की तरक्की को तरजीह देने और बलूचिस्तान के अवाम के फलाह बहबूद के लिए वफाक की जानिब से इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के बलूचिस्तान के तलबा को आला तालीम की फ़राहमी के लिए माजी में दिए गए सैकड़ों स्कॉलरशिप्स पर खिराज तहसीन पेश किया और इस प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से फौरी अमल दरामद की हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मशहूर आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंगपेंग याओ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में डिजिटल इकॉनमी और इख्तराई उलूम के जरिए मुल्क की तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चैंगपेंग याओ की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुरी का खैर मकदम किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि मिस्टर याओ जैसी काबिल कदर शख्सियात की मदद से तरक्की की नई राहें हमवार होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है और इस मकसद के हसूल के लिए नौजवानों को IT स्किल सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सूबा पंजाब जदीद टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। बाइनेंस के CEO चांगपिंग जाओ ने शानदार मेज़बानी पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उनके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के विजन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डेरिस शेवर फारिस लाहौर में मुलाकात की और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और नशोनुमा के लिए इश्तराक कार बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत पंजाब अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों को SOS विलेज में महफूज छत और मयारी तालीम की फराहमी काबिल तहसीन इक़दाम है। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया है। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जेबरोफ के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा माशी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई है। तफसील नमरा सुहेल से। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात मुस्तहकम करने में आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जेबरोफ के किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में बताया गया कि वज़ीर आज़म के हालिया दौरा आज़रबाईजान के बाद से सरमायाकारी मंसूबों में तेजी आई है। वफूद की सतह पर मुलाकात में बुनियादी ढांचे, IT और तवानाई के शोबों में मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर बातचीत की गई। शुरका को बताया गया कि वजारत सनत ने भी तिजारती हुजम बढ़ाने और पाकिस्तान आज़रबाईजान दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से रोड मैप तैयार किया है। आज़रबाईजान के सदर के आइंदा दौरा पाकिस्तान में ताउन की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जेबरोफ दफ्तर खारजा पहुंचे तो नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रस्मी मुसाफे के बाद दो तरफा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आज़रबाईजान के वजीर ने पाकिस्तान की जानिब से उनकी और आज़र वफ्द की बेहतरीन मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ दो तरफा कसीरुल जहती ताउन में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की दोस्ती खित्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम है। दोनों मुल्कों की क़यादत, तिजारत, सरमायाकारी और IT के शोबे समेत तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड ने वजीरिस्तान ब्लॉक में वाक़ स्पिनवॉर्म 1 कुएं से चौथा गैस और तेल का जखीरा दरियाफ्त कर लिया है। माड़ी एनर्जीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फ़हीम हैदर ने नए हाइड्रोकार्बन ज़खायर की तलाश और तरक्की के लिए कंपनी की जानिब से मुसलसल कोशिश के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम, DGPC, सूबाई हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी कम्यूनिटीज़ और मुश्तरका मनसूबे के शराकतदारों का भी शुक्रिया अदा किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने इस अहम संग मील के हुसूल में माड़ी एनर्जीज टीम की लगन और कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,15,532 पर बंद हुआ। तफसील कराची से जमीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मकामी इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखने में आई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1780 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती काविशों और पॉलिसियों की वजह से मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं।
पाकिस्तान में जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आते हैं। इन्फ्लेशन 60 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है, ट्रेड डेफिसिट के नंबर हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर नजर आ रहे हैं, रिजर्व हमारे एक हेल्दी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो सरमायाकार का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इस वक्त भी कायम है और हम देख रहे हैं कि जहां भी डिप्स आती हैं मार्केट में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं और मार्केट रिकवर होती है। आज बाजार हिस्सेस में 33 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत के 2,94,000 सौदे हुए, जिनमें 53 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 273 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 126 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 54 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मार्केट में ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, बैंक्स और पावर कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिडिंग माहिदे पर दस्तखत हुए। मुश्तरका बिडिंग माहिदे से बैरूनी सरमायाकारी के मौके खुलेंगे। ये माहिदा तुर्की के सरकारी पेट्रोलियम कंपनी और पाकिस्तानी 3 कंपनीज OGDCL, माड़ी एनर्जीज, PPL के दरमियान तय पाया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अल्पमार अरसलान बेरेक्टर ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक से सऊदी अरब के डिप्टी वज़ीर माइनिंग अब्दुर्रहमान अल बलूशी ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के तवानाई और मादनी शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सालाना बुनियादों पर मिनरल फोरम का इरादा कर चुका है। पाकिस्तान सरमायाकार दोस्त पॉलिसी के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, तिजारत, मईशत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने रुकन ममालिक के माबैन ताउन, इलाकाई तिजारत और रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाकाई तिजारत और रवाबित के एजेंडे के फ़रोग़ के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी से तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल अल्पमार अरसलान बेरटेकर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की के वज़ीर तवानाई ने तुर्की में बिजली की तकसीम कार निज़ाम की प्राइवेटाइजेशन के अमल से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने तुर्क कंपनीज की तरफ से पाकिस्तान में जारी बिजली तकसीम कार कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन के अमल में दिलचस्पी से मुतालिक भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने तुर्की के साथ तवानाई के शोबे में नए मनसूबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया, जबकि तुर्क वज़ीर ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तकनीकी महारत और सरमायाकारी फराहम करने की पेशकश की। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर अफजाल भट्टी और हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि 700 से ज़्यादा अफराद कन्वेंशन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कन्वेंशन के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल पेश करेंगे। OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर अफजाल भट्टी ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की फरहमी के अमल में बेहतरी के लिए मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में अदलिया इस्लाहात, सस्ते और फौरी इंसाफ की फरहमी और अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सैयदा तंजीला सबाहत, सीनियर वकला ख्वाजा हारिस, कामरान मुर्तज़ा, सीनियर मुनीर प्राचा और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी समेत दीगर वकला ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बार के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को 4 माह में 9 मई के मुलजिमों के मुकदमात का फैसला करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंसदार दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 रोज की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत की। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि मशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ था। इंसदार दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद किया जाए तो वह बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती हैं। पंजाब हुकूमत 9 मई के सानहे के नुकसानात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को लाहौर, रावलपिंडी और मियांवाली समेत पंजाब के 38 शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सूबे में हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ और 319 मुकदमा दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के मुलजिमों की कुल तादाद 35,962 से 11,367 को गिरफ्तार किया गया, जबकि
24,595 मुलजिम ताहाल मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट के तहत मातहत नहीं होती। 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। अदालत ने ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो कराई गई यकीन दहानियों पर जवाब दें। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ ने हमेशा की तरह जवाब जमा करवाने और दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि केस 1 साल से ज़ेर अल्तवा है, आज आपने दलाइल देने थे। बैरिस्टर गौहर ने हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने समाअत से मना नहीं किया, आप हर सूरत अगली पेशी में दलाइल दें और जवाब जमा करवाएं। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा कि हमेशा की तरह पीटीआई ये केस रोकने की कोशिश कर रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो जमात नहीं कराती उस पर पाबंदी लगाई जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में आके तारीखें मांगते हैं। दरमियान में हकूक किसके पीछे जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के। कल के जो पारसा थे उन पे कहते हैं 36 अरब रुपए का उन्होंने गबन किया है, फंड्स को लूटा है। ये अवाम के हकूक है, हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा है कि पीटीआई ने एक बार फिर अपनी मनफी जहनियत जाहिर कर दी। माइंस एंड मिनरल्स बिल को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत करना उनके मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करता है। इख्तियार वली ने कहा कि मुल्की मफादात के खिलाफ इन अनासिर की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। को मशरूत करके इमरान खान और उसकी बहन और तमाम तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत और अपनी गंदी जहनियत का सबूत दिया है। इंशाल्लाह आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, वहां के माहौलियात के साथ जो खिलवाड़ किया है उस पर भी आवाज उठाएंगे। दरख्तों की कटाई जारी है जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिनरल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेके दिए, इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक वाइट पेपर हम जारी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर कौन कहां पर माल बना रहा है, किसके पेट फूल रहे हैं, किसके बैंक फूल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। हम आपके इस ऐलान को, आपकी इस गंदी सोच को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके इन तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के पुरअसरार अमवात को डूबने या खुदकुशी का नतीजा करार देने के भारतीय हुकाम के दावों को चैलेंज किया गया है। KMS के मुताबिक अल जज़ीरा की रिपोर्ट में फरवरी में जिला कोलगाम से लापता होने वाले 2 भाइयों रियाज और शौकत अहमद की एक नहर से लाशें बरामद होने का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके जिस्मों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में दोनों नौजवानों की मौत को दौरान हिरासत, गुमशुदगी या मावराए अदालत कत्ल का नतीजा करार दिया है। दोनों भाइयों के साथ लापता होने वाला एक और नौजवान मुख्तार अहमद आवान ताहाल लापता है, जिससे मुतासरा ख़ानदान के खदशात को मज़ीद तक़वियत मिलती है।
कठुआ और दीगर अजला में गुर्जर बरादरी के अरकान पर दौरान हिरासत तशद्दुद और जाली मुकाबलों में कत्ल समेत इसी तरह के वाक़यात भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मकबूजा इलाके में कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने के खर्चात की तौसीक करती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे की शदीद मजम्मत करते हुए उसे एक सियासी ड्रामा करार दिया, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आलमी बिरादरी की तवज्जो हटाना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि अमित शाह का दौरा मकबूजा कश्मीर में अमन और हालात मामूल के मुताबिक दिखाने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला का दौरा रियासती जबर और बैन अल-अक़वामी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों को छुपाने की एक वसीतर प्रोपेगेंडे मुहिम का हिस्सा है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि अमित शाह के दौरे के कश्मीरियों के लिए कोई अहमियत नहीं, जिन्हें भारत के गैर कानूनी फौजी तसल्लुत की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के अलावा मकबूजा कश्मीर असम्बली के आज़ाद अरकान ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज किया। अरकान ने ऐवान में मुतनाज़ा एक्ट पर बहस कराने से स्पीकर के इनकार पर एहतजाज किया और असम्बली के दाखिली दरवाजे पर धरना दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन अल्ताफ कल्लू ने ऐवान में हंगामा आराई करने और मुतनाज़ा एक्ट पर बहस को रोकने पर बीजेपी पर कड़ी तनकीद की है। दूसरी जानिब मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट पर पूरा भारत एहतजाज की लपेट में आ गया है। मुजाहिरीन ने मणिपुर में बीजेपी के रहनुमाओं के घरों को नजर आतिश कर दिया है। तफसील बताएंगे फहद अजीज। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसी से भारत में मुनाफरत और इंतशार बुलंदियों को छूने लगा। हाल ही में बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ इमलाक पर कब्जा करने के लिए नया मुतनाज़ा कानून मुतारफ कराया था। लोकसभा ने बीजेपी हुकूमत के पेश करदा मुस्लिम वक्फ इमलाक पर कब्जे का नया बिल मंजूर कर लिया, जिससे मोदी हुकूमत को वक्फ बोर्ड के फैसलों में मुदाखलत और वक्फ अमलाक पर कब्जा करने का इख्तियार मिल गया है। इस सिलसिले में मुतनाज़ा वक्फ बिल पर पूरा भारत एहतजाज की लपेट में आ गया है। मणिपुर में बीजेपी रहनुमाओं के घर नजर आतिश कर दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामा बीजेपी लीडर की मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर हुआ। मणिपुर में मुसलमानों के अक्सरियती इलाके में बीजेपी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और बीजेपी अक़लियती विंग के सदर का घर भी जला दिया गया। मुसलमानों ने बीजेपी रहनुमा का बयान तौहीन अमेज़ करार दिया है। अवाम का कहना है कि मणिपुर पहले ही मोदी की नफरत का शिकार है और अब यह बिल की मंजूरी कबूल नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी लीडर ने एहतजाज के खौफ से माफी मांग कर अपना मौकफ तब्दील कर लिया और वक्फ बिल के खात्मे का मुतालबा कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी की पॉलिसियां मुस्लिम बरादरी में इश्तियाल का बायस बन रही हैं। मोदी के इस गैर आईनी फैसले पर बैनुल अक़वामी बरादरी को आवाज उठाना पड़ेगी। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल ने रात भर और अलसुबह वस्ती और शिमाल गजा पर फजाई हमले किए। बैतुल्लाहिया में एक घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गजा शहर पर भी एक और हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाबलूस और तुबास में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 7 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के नसीर अस्पताल के करीब गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों के खैमों पर बमबारी से जख्मी होने वाला सहाफ़ी अहमद मंसूर भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जिसके बाद जाँ बहक सहाफ़ियों की तादाद 3 हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान ऐलान किया है कि अमरीका हफ्ते को ईरान के साथ उसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त और आला सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद कोई मुआहिदा हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा। हम हफ्ते के दिन तकरीबन आला तरीन सतह पर बहुत अहम मुलाकात कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ताशकंद उज़्बेकिस्तान में पार्लिमानी नेटवर्क की चौथी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पार्लिमानी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बेडोंग कॉन्फ्रेंस की 70वीं सालगिरह पर अपने खिताब में उसके बुनियादी इक़दार, सियासी खुदमुख्तारी, अदम मुदाखलत और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत पर रोशनी डाली। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आलमी अदम मसावात, बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगियों और माहौलियाती तग़य्युरात का मुकाबला करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सदारत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने, सीपैक मनसूबों की बरवक्त और मौसर तकमील को यकीनी बनाने की हुकूमती आज़म को दोहराया गया। इजलास को बताया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन की क़यादत में माहिरीन पर मुश्तमिल एक वफ़द रवामा चीन का दौरा करेगा ताकि शाहराह कराकरम मनसूबे के अमली मराहिल को हतमी शक्ल दी जा सके।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 47، سبی 46، بھاول نگر، خیرپور، لاڑکانہ، مٹھی، موہنجودڑو، نواب شاہ، پڑیدن، آورائی خان، روہڑی، سکرنڈ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. پاکستان کے نور زمان ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. کراچی میں جاری چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں نور زمان نے فرانس کے میلویل کو 3-0 سے شکست دی. نور زمان نے میلویل کے خلاف 11-7، 11-9 اور 11-8 سے کامیابی حاصل کی. ایک اور کوارٹر فائنل میں محمد حمزہ خان کو ملائیشیا کے امیش راج چندرن کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. راج چندرن نے حمزہ خان کو 11-7، 11-9، 7-11 اور 11-6 سے مات دی. مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. مصر کے KL ٹورکی اور ابراہیم الکبانی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. What a beautiful backhand. پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار ہے. پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں 3 روز باقی رہ گئے ہیں. افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا. 19 مئی تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 6 ٹیموں کے درمیان فائنل سمیت 34 میچز کھیلے جائیں گے. راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم افتتاحی میچ سمیت 11 مقابلوں کی میزبانی کرے گا. قذافی سٹیڈیم لاہور 13، نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی اور ملتان سٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کریں گے. فائنل 18 مئی کو قذافی سٹیڈیم میں شیڈیول ہے. PSL کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھائے جائیں گے. پاکستان سپر لیگ 10 کے لیے میچ افیشلز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے. PSL میچز 11 اپریل سے 18 مئی تک کھیلے جائیں گے. لیگ میں 13 امپائرز اور 7 میچ ریفریز ذمہ داریاں نبھائیں گے. ICC کے ایلیٹ پینل میں شامل احسن رضا، پال رائفل، کمار دھرماسینا، ایلیکس وارف اور کرس براؤن امپائرز پینل کا حصہ ہوں گے. پاکستان سے علیم ڈار، آصف یعقوب، فیصل خان آفریدی، راشد ریاض وقار بھی ذمہ داریاں نبھائیں گے. PCB ایلیٹ پینل آف امپائرز میں عبد المقیت کا نام بھی شامل ہے. PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں. لاہور قلندرز نے لاہور میں آخری ٹریننگ سیشن میں سینیریو بیس میچ کھیلا. میچ میں کپتان شاہین شاہ آفریدی، جہانداد خان، زمان خان، سکندر رضا اور دیگر کھلاڑی شریک ہوئے. لاہور قلندرز کی ٹیم آج اسلام آباد پہنچے گی. دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے بھی اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے اسلام آباد کلب میں ہیڈ کوچ کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا کل سے لاہور میں آغاز ہوگا. قذافی سٹیڈیم لاہور میں افتتاحی روز 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں میزبان پاکستانی ٹیم آئرلینڈ کے مد مقابل ہوگی. دوسرا میچ سکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان ویمنز ٹیم نے اپنے ابتدائی دونوں وارم اپ میچز میں کامیابی حاصل کی تھی. پہلے وارم اپ میچ میں تھائی لینڈ جبکہ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست ہوئی تھی. نیوی اور PAF نے نیشنل والی بال چیمپئن شپ کوارٹر فائنل لیگ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. واک اینڈ میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں نیوی نے اسلام آباد کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی. نیوی کی جیت کا سکور 25-13، 25-16 اور 25-13 رہا. دوسرے کوارٹر فائنل میں PAF نے پنجاب کو 3-0 سے ہرایا. پاکستان ایئر فورس کی ٹیم نے پنجاب کے خلاف 25-21، 25-21 اور 25-16 سے کامیابی حاصل کی. دلچسپ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بال کراس ہوگی لیبرو کا. پاکستان جونیئر نے عمان کی ٹیم کے خلاف دوستانہ ہاکی سیریز کے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم نے عمان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. پاکستان کی جانب سے محمد سفیان خان نے 3 گول سکور کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی.
बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।